محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتوں میں، اس لیے یہ دن عیدوں کی عید ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس دن سے ہائے ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ارشد انڈیا سے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سید امین القادری کے نیو بیان 12 ربیع الاول شریف کیوں مناتے ہیں، اس بارے میں بیان کرنے والے ہیں سید امین القادری۔ آخر 12 ربیع الاول شریف کو کیا ہوا تھا، اس ویڈیو میں جاننا چاہیں گے۔ 12 ربیع الاول شریف کو ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اس بارے میں سید امین القادری بتانے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک اہل ایمان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق حضور علیہ السلام کا میلاد اپنے اپنے اعتبار سے منایا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں آیتوں کے اندر اپنے حبیب کی ولادت کا ذکر کیا ہے، تو صحابہ کیوں نہ کرتے، تابعین کیوں نہ کرتے، اولیاء کیوں نہ کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہمارے دلوں کا سرور ہے، یہ ہمارے ایمان کو جلا بخشنے کی چیز ہے، جس کو ہم آقا کی میلاد کہتے ہیں۔ میلاد آئی، یہ ہماری عیدوں کی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی، نہ عید الاضحیٰ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کلیاں نہ ہوتی، نہ یہ گلوں کا تبسم ہوتا، نہ یہ چاند کی چاندنی ہوتی، نہ یہ سورج کی رانائیاں ہوتی، نہ یہ شفق کا جمال ہوتا، نہ یہ افق کی سرخی ہوتی، نہ یہ آسمانوں کا سائبان ہوتا، نہ یہ زمین کی چادر ہوتی، نہ سبزہ زار ہوتا، نہ بھوروں کی گنگناہٹ ہوتی، نہ چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوتی، نہ لالا کے رخسار ہوتے، نہ نرگس سی آنکھیں ہوتی، نہ زلفیں ہوتی، نہ خم ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ سرائی ہوتی، نہ جام ہوتا، نہ کائنات ہوتی، نہ ارضیات ہوتے، نہ فلکیات ہوتے، کچھ نہ ہوتے، نہ بلکھاتی ہوئی ندیاں ہوتی، نہ گرتے ہوئے آبشار ہوتے، نہ موجیں مارتے ہوئے سمندر ہوتے، نہ دریاؤں کی روانی ہوتی، نہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ پتھروں کا وجود ہوتا، نہ پہاڑوں کا غرور ہوتا، نہ درختوں کی سبزہ دار ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں، نہ ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ خدا کی تسبیح و تحلیل ہوتی، نہ نمازوں کا جمال ہوتا، نہ رکوع کی برکتیں ہوتی، نہ سجود کی رانائیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا کائنات میں اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا۔ اس لیے کہ میرا اللہ فرما چکا ہے، لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ وہ وجہ کن فکا ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، جسے آمنہ کا لال کہتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھا تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے انسانیت کی جان آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کو پیدا کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جنت ان کے طفیل بنی، دوزخ ان کے طفیل بنی، عرش ان کے طفیل بنا، فرش ان کے طفیل بنا، کرسی ان کے طفیل بنی، فرشتے ان کے طفیل بنے، جنات ان کے طفیل بنے، انس ان کے طفیل بنے۔ نہ آرائش کرتا خدا سارے زمانے میں، نہ کیوں آرائش
कोशिशें करता, खुदा सारे जमाने में तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था। इस जमाने में मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम की आमद, हुजूर सैयद आलम की आमद तख्लीक कायनात की वजह है, वो वजह तख्लीक कायनात है। अल्लाह अकबर। कुरान का नुज़ूल न होता अगर वो न आते, खुदा का दीदार हमें नसीब न होता जन्नत में अगर उनका वजूद पाक न होता, अल्लाह की मारिफत न होती अगर वो न आते। याद रखें, ये गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह आगे फिर कभी होगी। आज जो मेरा उन्वान है, हम मिलाद क्यों ना मनाएं, मैं इस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अपने बेगाने मिलाद से मोहब्बत करने वालों से भी और मिलाद की मुखालफत करने वालों से भी बस मैं थोड़ी देर उनके कानों की समाअत, उनके दिलों की तवज्जो, उनकी नजरों की जो है वो पाकीज़गी अपने चेहरे की तरफ चाहता हूँ ताकि लोग सुने हम मिलाद क्यों न मनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलाद कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के करने को। हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, आका की आमद हुई तो क्या हुआ, बस इसी का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके लिए कोई एहतमाम करे, कोई इंतजाम करे, कोई जो है वो सजावट करे, तो ये जित कदर एहतमाम बढ़ता जाएगा उसी कदर जो है वो सवाब भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एहतमाम इज्जत व तौकीर के लिए होता है, ताजीम व एहतराम के लिए होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं, इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम, जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो, एक काजी, तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो, एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब। यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु, वो जो सुनते हैं, सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं जिसे हम शामियाना कहते हैं, लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगे पकती है, रुक्के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं, लेकिन हम शरबत पिलाते हैं। शरबत भी सिर्फ
शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बन जाता है, लेकिन हम उसमें दूध डालते हैं, उसमें खुशबू डालते हैं, सेंट डालते हैं, वगैरह वगैरह। मैं कोई आपको शरबत बनाने की तरकीब बताने नहीं बैठा, सिर्फ एक हल्की सी तमहीद चाहता हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। ये सब इसलिए होता है, हालांकि निकाह से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, न शरबत का, न मंडप का, न देग का, न खाने का, न कुर्सी का, कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उससे हटकर भी याद करे तो भी निकाह हो जाए, टाटपट्टी पे बैठे तो भी हो जाए, शरबत ना हो तो भी हो जाए, मंडप ना हो तो भी हो जाए, लेकिन आप आने वाले मेहमान की इज्जत की खातिर अच्छे से अच्छा इंतजाम करते हैं, ताकि आने वाले को पता चले कि जिसके घर की शादी में जा रहे हैं वो कोई फटीचर या जाहिल नहीं है, मेहमानों की कदर जानता है, मेहमानों का एहतराम जानता है, मेहमानों की तकरीम जानता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो वो मेहमान की तकरीम और ताज़ीम करे। खुदा की कसम ये न फर्ज है न वाजिब, अल्लाहु अकबर, लेकिन तकरीम मेहमान का हुक्म है, इसलिए सब कुछ करते हैं। मिलाद बस इतनी है, मिलाद बस इतनी है कि हुजूर की आमद का जिक्र किया जाए, लेकिन चूंकि आने वाला इस कदर शान और शौकत वाला है, खुदा का हबीब है, कि हमारा दिल नहीं भरता कि जमीन पे बैठकर वो वाक़यात बयान करे। इसलिए हम लाइटिंगें भी लगाते हैं, कुमकुमे भी लगाते हैं, स्टेज भी सजाते हैं, झंडे भी लगाते हैं, धूमधाम करते हैं, ताकि पता चल जाए आने वाला मामूली नहीं, वो अल्लाह का नायब मुतलक आ रहा है। तकरीम का हुक्म ताज़ीम के लिए किया जाता है, वरना मिलाद सिर्फ वाक़यात मिलाद को बयान करने का नाम है। अब आइए ना, खुदा ने कैसे उनकी आमद बयान की। मेरा अल्लाह फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास आ गया इज्जत वाला रसूल। उस रसूल की शान क्या है? अजीजुन अनितुम हरीस, तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उस रसूल पर बड़ा भारी पड़ता है। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि अगर तुम्हें कांटा भी चुभे तो वो बेचैन होता है। तुम्हारे घर के चिराग की बत्ती भी गुल हो जाए तो उसको बेकरारी होती है। वो तुम पर बड़ा मेहरबान है। अल्लाह के इनामात जब तुम पर वो देखता है तो उसमें वो हरीस है, हलमी मजीद कहता है, मजीद की तलब करता है। वो इतना तुम पर मेहरबान है, ऐसा तुम पर मेहरबान है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उसको बड़ा गिरा गुजरता है, तुम्हारी तकलीफें उसको बड़ी गिरा गुजरती है, और वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी भलाई के लिए हरीस है। अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, और वो मोमिनों के लिए मेहरबान मेहरबान है, मेहरबान मेहरबान। कुरान ने रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा। याद रखें, माँ बाप के लिए खुदा ने रहीम कहा लेकिन रऊफ नहीं कहा। और भी जगह पर कहीं किसी को रऊफ कहा तो रहीम नहीं, लेकिन यहाँ रऊफ भी कहा और रहीम भी कहा, यानी ये तुम पर मेहरबान मेहरबान है। ये कितना मेहरबान है, एक माँ अपने बच्चे पर जितनी मेहरबान होती है उससे ज्यादा ये तुम पर मेहरबान है। एक बाप अपनी औलाद पर जितना मेहरबान होता है उससे करोड़ों दर्जा ज्यादा ये तुम पर मेहरबान है। बल्कि बता दूं, जरा दिल के कान अगर मेरी तरफ लगे हैं तो दिल खोलकर बड़ी जिम्मेदारी से ये गुफ्तगू सुन ले। वो माँ से ज्यादा मेहरबान है, वो बाप से ज्यादा मेहरबान है। हत्ता के एक नबी अपनी उम्मत पर जितना मेहरबान होता है वो नबी से ज्यादा तुम पर मेहरबान है। क्योंकि अब आप देख ले जरा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूं कि एक नबी अपनी उम्मती पर जितना मेहरबान होता है वो उससे ज्यादा तुम पर मेहरबान है। इसलिए कि जनाबे नूह भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे मूसा भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे ईसा भी अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, जनाबे दाऊद भी अपनी कौम पर मेहरबान थे, जनाबे यूसुफ भी अपनी कौम पर मेहरबान थे। ये सब मेहरबान थे। ये एक नबी ही तो थे जो अपनी उम्मत पर मेहरबान थे, लेकिन नबी उम्मत पर जितना मेहरबान होता है ये उससे ज्यादा मेहरबान है।
مطلب کیا ہوا؟ اب ذرا آئیے تاریخ کے جھروکے میں جھانکے اور میری قوم کے جوانوں ذرا دل کے کانوں سے سن لو کہ وہ رسول امت پر کتنا مہربان ہے، رؤوف الرحیم قرآن نے کہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میری قوم، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ بت نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، چھوڑو انہیں، چھوڑو انہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھایا، قوم نہ مانی، خاموشی میں سرگوشی میں سمجھایا، نہ مانی تو چلا کر سمجھایا، نہ مانی اس کے بعد بلا کر کے پکارا، انہوں نے چہرے چھپا لیے، بھاگ گئے۔ حالت یہ ہوئی کہ اس وقت توجہ فرمائے، بہت غور سے سنیں، میں تاریخ کا وہ باب پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے نبی کی اہمیت پتا چلے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ صرف نماز لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ صرف روزہ لے کر کے نہیں آئے تھے،